Hello students, welcome to my new video. In this video, we will see the remaining part of the second lesson of geography. Natural resources, land, soil and water. And students, listen here. You should take your SST textbook. And now, you have to open your page number 131 while watching this video. This effort is necessary for everybody. Okay? Because for understanding the whole lesson. And this video is the part 2 of this second lesson. And what we have seen in the first video, in the previous video, we have seen about the land is the natural resource. Then we have seen about the land use, okay, then comparative land use in the world. Then we have seen about the different landforms, like mountains, plateaus, then plains, and then we have seen about the conservation of land resources. You know, conservation to protect to any thing, okay, that is called the conservation. Protection करके रखना, संभाल के रखना, that is called conservation. Properly use करना. Then we have seen about the landslide. What is mean by landslide? The form of means movement which displaces material like rocks or debris on the earth in a hilly region is known as a landslide. जो भी रॉक रहते हैं या लैंड रहती है हायर प्लेसेस पे, वहाँ से जो भी पीसेस ऑफ लैंड, पीसेस ऑफ रॉक्स बोलेंगे, ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स, ओके, ये ऊपर से नीचे आके गिरते, उसे हम बोलेंगे लैंडस्लाइड. Then mitigation mechanism. We have seen about the mitigation mechanism. Means there are some methods for conservation of land. Okay. Then next we have seen about the soil. Soil is also natural resource. Okay. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. Then we have seen about the soil formation, and there are some factors, and these factors are responsible for the forming of soil, formation of soil, like climatic condition, parents rock materials, relief features, then humus, then time period. Okay. Then we have seen in the previous video about soil profile, and there are 4 main layers of soil. First is your top soil, then subsoil, then we have seen about the rock fragments and bed rock. Means first is here horizon A, second layer is here horizon B, and third layer is here horizon C, and fourth layer is here horizon D. Okay, there is the picture of these different layer of the soil, and we have studied about this picture also in the previous video. Got it? Now in this video we will see the soils of India. There is different soils in our India. Okay. Now we have to study about the soils of India. India is a primarily an agricultural country. It has a variety of climates, relief features and rock structures. And our India is primarily agricultural countries. Means in our India there is a agriculture is primary occupation, primary activity. Okay. It has a variety of climates. Means in our India there is a different climates in different places. Relief features means there are different landforms in our India in different places, like mountains, plateaus, plains. Okay. And rock structures also means different types of rocks are here in our India. Okay.
Due to all these features, different types of soils are found in India, and because of these climatic condition, because of these relief features, because of these rock structures, there are different types of the soils in our India. Got it? First soil is here, alluvial soil. It is the most widespread soil in India. It is found in the northern plains, coastal plains, and the deltas of various rivers. Northern plains. Where are these northern plains? Northern plains are situated in the north side of our India. Okay. Then coastal plains. Where are these coastal plains? Coastal plains means जो भी ओशन का किनारा है, ओशन के किनारे पे हमें ये कोस्टल प्लेन्स मिलेंगे. Then delta, you know delta means river meet to the ocean. Okay. और जो प्लेस पे रिवर मीट होती है ओशन को, यहाँ पे रिवर का जो भी स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्पीड it deposit the sediments on this place. Okay. And because of these deposition form the landforms, and these landforms are called deltas. Got it? This soil is formed due to the deposition of sediments by the rivers, and it is very fertile. और ये जो भी soil है alluvial soil, ये बहुत ही fertile रहती है. Then next soil is here, black soil. इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डार्क इग्नियस रॉक्स. और ये कौन से रॉक से फॉर्म हो रही है? डार्क इग्नियस रॉक से. इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज. एंड ये कहाँ पे मिल रही है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पे. जो भी डेक्कन प्लेट्यूज का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलेगी. It is made up of fine clay material and can hold moisture. And ये किससे बनी हुई है? क्ले मटेरियल से. एंड ये मॉइस्चर पकड़ के रख सकती है. ब्लैक सॉइल इज़ अ लोकली कॉल्ड रेगर, और ब्लैक सॉइल को रेगर भी कहा जाता है. इट इज़ बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन एंड शुगर केन. एंड ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल, ये कॉटन और शुगर केन के कल्टीवेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है. यहाँ पे ये जो भी कॉटन एंड शुगर केन के क्रॉप्स होंगे, ये बहुत सारे ग्रोज होंगे. ओके. देन नेक्स्ट इज हियर रेड सॉइल. द रेड सॉइल इज फाउंड इन द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया. एंड जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज है इंडिया के, इसके साउथ में और ईस्ट में ये हमें रेड सॉइल मिलती है. द रेड सॉइल ऑफ द सॉइल इज़ ड्यू टू हाई आयरन कंटेंट. और ये रेड सॉइल रेड कलर में क्यों है? बिकॉज ऑफ द हाई आयरन कंटेंट. इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, और ये फर्टाइल नहीं रहती. व्हाट इज़ मीन बाय फर्टाइल? फर्टाइल किसे बोलेंगे हम? जो सॉइल में बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं, दैट सॉइल इज कॉल्ड द फर्टाइल. ओके. उपजाऊ. दिस सॉइल कैन बी मेड फर्टाइल बाय रेगुलर यूज ऑफ द ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स. अगर यहाँ पे हमें क्रॉप्स ग्रो करने हैं और ये सॉइल को फर्टाइल बनाना है, तो यहाँ पे हमें ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ेंगे रेगुलरली. देन laterite soil. Next soil is here, laterite soil. It is formed in area of heavy rainfall like northeast India, the western ghats of छोटा नागपुर प्लेट्यूज. और कहाँ पे ये फॉर्म हो रही है? लेटराइट सॉइल जहाँ पे हेवी रेनफॉल है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न घाट्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यूज. ओके. In these areas, the soil undergoes a process called leaching, by which essential nutrients, salts, minerals drains out from the soil because of the heavy rains. And ये जो एरिया है, यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस होती है. वाई? बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल.
जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स रहते हैं सॉइल में, ये हेवी रेन की वजह से वाटर के साथ फ्लो हो जाते हैं, उसे बोलेंगे हम लीचिंग। ओके, देयरफॉर लैटराइट सॉइल इज़ पुअर इन फर्टिलिटी, और इसीलिए ये जो भी लैटराइट सॉइल है ये फर्टाइल नहीं रहती। सच ए सॉइल कैन सपोर्ट ओनली pastures and shrubs. Pastures means feeding for animals. Next is a mountain soil. It is mainly found on the hill slopes covered with the forest. और ये जो भी mountain soil है ये कहाँ पे मिलती है? हिली स्लोप्स पे, जो भी स्लोपिंग एरिया है वहाँ पे हमें माउंटेन सॉइल मिलती है और ये फॉरेस्ट से कवर रहती है। दिस सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस एज इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और ये जो भी सॉइल है माउंटेन सॉइल, यहाँ पे बहुत सारे हमें डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स के रिमेन्स मिलेंगे, इसे हम बोलेंगे ह्यूमस। ओके, एंड ये जो भी सॉइल है माउंटेन सॉइल, ये ऑर्गेनिक मैटर के डिपोजिशन से बनी हुई रहती है। दैट्स वाई दिस सॉइल इज़ रिच इन ह्यूमस। ओके, इट इज़ सूटेबल फॉर टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स एंड स्पाइस कल्टिवेशन। और ये जो भी सॉइल है माउंटेन सॉइल, ये टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स एंड स्पाइस कल्टिवेशन के लिए सूटेबल है। Then next soil is here desert soil. It is found in hot and semi-arid region. Arid means dry. Okay, तो ये कहाँ पे मिलती है ये soil हमें? hot and dry region में. It has a thick layer of sand. और ये जो भी soil है यहाँ पे sand की thick layer मिलेगी. It is found in Rajasthan and requires a regular irrigation. और ये हमें हमारे इंडिया में राजस्थान में मिलती है और ये सॉइल को रेगुलर इरिगेशन की ज़रूरत रहती है। यू नो, इरिगेशन मीन्स जो भी रिवर रहेगी, वाटर बॉडी रहेगी, इसका वाटर स्टोर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल डैम बिल्ड करके, और ये वाटर एग्रीकल्चर को प्रोवाइड किया जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इरिगेशन। गॉट इट? दिस सॉइल इज़ वेरी पोरस एंड कैनॉट होल्ड वाटर। और ये जो भी सॉइल है ये बहुत ही पोरस होने की वजह से वाटर ये होल्ड करके नहीं रख सकती। अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन दिस सॉइल विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और यहाँ पे जो भी क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं ये इरिगेशन के हेल्प से किए जाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। डिप्लेशन मीन्स एग्जॉशन। जो भी सॉइल है सॉइल की फर्टिलिटी है ये कम होना, दैट इज कॉल्ड द डिप्लेशन। ओके, द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स डिपेंड अपॉन द सॉइल फर्टिलिटी। और जो भी क्रॉप्स का कल्टिवेशन किया जाता है ये सॉइल फर्टिलिटी पे ही डिपेंड रहता है। जितनी सॉइल फर्टाइल रहेगी उतने क्रॉप्स अच्छे से ग्रो होंगे, ज़्यादा ग्रो होंगे। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। और जो भी टॉप सॉइल रिमूव होके फ्लो हो जाती है, निकल जाती है, उसे हम बोलेंगे सॉइल इरोजन। ड्यू टू इरोजन द सॉइल लॉजेज इट्स फर्टिलिटी। और अगर इरोजन हो रहा है तो उसकी वजह से जो भी सॉइल है ये इसकी जो भी फर्टिलिटी है ये कम हो जाती है। ओके, you know, erosion, upper layer of soil flow with water with wind. Okay, soil erosion is mainly caused by running water and wind. और soil erosion किसकी वजह से होते हैं? Especially which are the main reasons? Running water and wind. Deforestation, overgrazing, overutilization of land and adoption of unscientific farming methods also cause depletion of soil fertility. Not only soil erosion is the main reason to depletion of soil fertility, but there are many other factors are also responsible to depletion of soil fertility, to exhaustion of soil fertility. These are deforestation. Deforestation means forest cutting. देन ओवरग्रेजिंग मीन्स जो भी एनिमल्स को फीडिंग किया जाता है उसे हम बोलेंगे ग्रेजिंग। ओके, तो ये जो भी प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो फर्टिलिटी है ये ख़त्म हो जाती है सॉइल की।
देन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, यूटिलाइजेशन मीन्स यूज़, जो भी लैंड यूज़ है ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी सॉइल फर्टिलिटी कम होती है। देन एडोप्शन ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स, एंड जो भी फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, यहाँ पे जो भी प्रॉपर मेथड है वो यूज़ नहीं की जाती, उसकी वजह से भी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो ख़त्म हो सकती है। गॉट इट? देन there are MCQs. First, which soil has high iron content? There are three options. First, laterite soil, red soil, and the mountain soil. B option is the answer here. रेड सॉइल, जो भी रेड सॉइल है, जो भी रेड कलर है ये सॉइल का, ये आयरन की वजह से ही है। ओके। देन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? And there are three options: climatic conditions, earthquakes, and the relief features. And among these three options, climatic conditions and relief features are responsible for the formation of soil. Okay. And this earthquake is not responsible for the formation of soil. That's why B option is the answer here, earthquake. Got it? Now next topic, soil conservation. What is this conservation? Means to protect, प्रोटेक्शन करना, संभाल के रखना, that is called the conservation. Okay. The protection of soil from physical as well as chemical deterioration is called the soil conservation. There are many methods, there are many measures. Measures means plan, उपाय योजना, solution. जो भी सॉइल इरोजन हो रहा है, जो भी सॉइल की फर्टिलिटी एग्जॉस्ट हो रही है, इस पर कुछ सॉल्यूशन है. एंड ऑल दीज मेजर्स आर इंक्लूड इन सॉइल कंजर्वेशन. ओके. Farmers across the world use different methods to conserve soil and to derive optimum benefits. और जो भी farmers है पूरे वर्ल्ड में ये जो भी मेथड्स है सॉइल कंजर्वेशन की वो यूज़ कर रहे हैं. सम मेथड्स आर गिवन बिलो. वी हैव टू सी अबाउट दिस मेथड्स हियर. फर्स्ट, अफॉरेस्टेशन. इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू कंजर्व सॉइल, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है सॉइल कंजर्वेशन की. मोर एंड मोर ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस शुड बी प्लांटेड, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज, श्रब्स, ग्रासेस प्लांट करने चाहिए. एंड रेकलेस कटिंग ड्रॉन डाउन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप्ड, और जो भी रेकलेस कटिंग है, जो भी फॉरेस्ट कटिंग हो रही है, इसे बंद करना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए. ओके. चेकिंग ओवर ग्रेजिंग. चेकिंग मीन्स स्टॉप. ओके. चेक मीन्स स्टॉप. Overgrazing by animals should be checked as the land becomes exposed to rain and wind. And जो भी overgrazing होता है, graze means feed for animals, feeding for animals. okay, animals को चराना, उसे हम बोलेंगे grazing. तो ये क्या होता है, बहुत बार ओवर हो जाता है, ओवर ग्रेजिंग हो जाता है. तो ये जो भी ओवर ग्रेजिंग है ये स्टॉप करना है. फॉडर शुड बी ग्रोन एज अ क्रॉप. क्रॉप जैसे जैसे हम ग्रेन्स के लिए क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, वैसे ही फॉडर भी ग्रो करने चाहिए. फॉडर मीन्स जो एनिमल्स के लिए खाने के लिए चारा रहता है, उसे हम बोलेंगे फॉडर. गॉट इट? देन नेक्स्ट मेथड इज योर क्रॉप रोटेशन. The cultivation of different crops on the same piece of land each year during different times is called the crop rotation. एंड जो भी कल्टिवेशन होता है अलग अलग क्रॉप्स का एक ही लैंड में, एंड हर एक साल में अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उसे हम बोलेंगे क्रॉप रोटेशन. गॉट इट? जो भी क्रॉप्स रहते हैं अलग अलग क्रॉप्स, वो एक ही साल में अलग अलग टाइम पे ग्रो किए जाते हैं एक ही लैंड पे. Got it? That is the crop rotation. This practice adds nutrients to the soil and helps in pest control. And ये जो भी practice है crops rotation, इससे जो भी soil है इसमें nutrients add होते हैं. Then contour plugging.
In this method, the farmer plugs parallel to the contour of a hill slope to form natural nutrients for water to flow down from the slope. एंड ये जो काउंटर प्लगिंग है ये स्लोपिंग एरिया में की जाती है. ओके ये काउंटर प्लगिंग में क्या किया जाता है कि फार्मर्स जो भी लैंड है वो प्लग करता है पैरेलली. ओके एंड इससे क्या होगा कि जो भी वाटर है वाटर के साथ जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो फ्लो नहीं होंगे. गॉट इट. देन नेक्स्ट इज हियर टेरेस फार्मिंग. इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव इन कंजर्विंग सॉइल इन माउंटेनियस रीजन्स. और ये जो भी टेरेस फार्मिंग है ये माउंटेनियस रीजन में बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है टू कंजर्व द सॉइल कंजर्वेशन के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फार्मिंग है टेरेस फार्मिंग. In this method, the hill slopes are cut into terrace to create flat areas to grow crops. और ये जो मेथड रहती है ये यहाँ पे जो माउंटेन्स है ये कट किए जाते हैं. हिल स्लोप जो है वो कट किए जाते हैं एंड जो भी लैंड है इसे फ्लैट बनाई जाती है for growing the crops. This method reduces the speed of flowing rainwater. और ये जो भी मेथड है इसकी वजह से जो वाटर फ्लो होता है वो कम हो जाता है. जो भी स्पीड है ये कम हो जाती है फ्लोइंग वाटर की. ओके फ्लोइंग रेन वाटर की. देन नेक्स्ट इज हियर स्ट्रिप क्रॉपिंग. It is the method in which cover crops such as small grains and grasses are planted alternatively with cultivated crops in narrow strips. एंड ये जो भी मेथड है स्ट्रिप क्रॉपिंग यहाँ पे फार्मर्स क्रॉप्स के साथ स्मॉल ग्रेन्स और ग्रासेस कल्टीवेट करते हैं प्लांट करते हैं. इससे क्या होगा कि जो भी क्रॉप्स है इससे सॉइल का मॉइस्चर और सॉइल को भी ये क्रॉप्स होल्ड करके रखते हैं. गॉट इट. Then cover cropping. In areas such as orchards and plantation, cover crops are planted between the young trees to check soil erosion. And what is this method cover cropping? इसमें क्या हो रहा है कि जो भी orchards है, orchards means garden, fruits garden. Okay? और जो भी plantation है यहाँ पे जो young trees रहते हैं इसके बीच में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, क्रॉप्स प्लांट किए जाते हैं फॉर चेकिंग द सॉइल इरोजन. ओके जो भी सॉइल इरोजन होता है ये इसे सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप्स प्लांट किए जाते हैं. ल्यूमिनियस क्रॉप्स आर ऑफन यूज्ड एज दे एड नाइट्रोजन टू द सॉइल. देन नेक्स्ट इज हियर प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट्स. In dry areas where wind erosion is common, rows of trees and shrubs are planted to reduce the speed of wind to protect the soil. And ये जो भी planting shelter belts है ये method ड्राई एरिया में यूज़ की जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड्स ब्लो होते हैं. उसकी वजह से जो सॉइल इरोजन होता है ये कॉमन रहता है. तो यहाँ पे ये मेथड यूज़ की जाती है. व्हाट इज़ दिस मेथड? प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट. कि यहाँ पे ट्रीज़ या श्रब्स के रोज़ प्लांट किए जाते हैं. ओके रो में ट्रीज़ और श्रब्स प्लांट किए जाते हैं और उससे क्या होगा कि जो भी विंड स्पीड है ये रिड्यूस होती है और उससे सॉइल का प्रोटेक्शन होता है. दिस रोज आर कॉल्ड द शेल्टर बेल्ट्स. और इसे ही हम बोलेंगे शेल्टर बेल्ट. जो भी रोज रहते हैं ट्रीज और प्लांट्स के उसे शेल्टर बेल्ट्स बोलेंगे. देन नेक्स्ट इज रॉक डैम्स. Rocks are filled up to check the flow of water and prevent soil loss by floods. और जहाँ पे ज़्यादा फ्लड आता है मीन ज़्यादा बाढ़ आती है वहाँ पे क्या किए जाते हैं रॉक्स पिल्ड किए जाते हैं. ओके और उससे क्या होगा कि जो भी फ्लोइंग वाटर है उसे रोक लगेगा और जो भी न्यूट्रिएंट जो भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है सॉइल के वो उसका प्रोटेक्शन होगा. एंड जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक आर इंडिया
This soil erosion is the serious problem, and what we have to do to the soil conservation. The methods for soil conservation should be planned. जो भी soil conservation की method है ये plan करनी चाहिए on scientific lines. While fertility of soil can be regained by intensive manuring, using chemicals, फर्टिलाइज़र्स एंड क्रॉप रोटेशन, अगर क्रॉप रोटेशन करके फर्टिलाइज़र्स यूज़ करके या मैन्योर यूज़ करके जो भी सॉइल है वो फिर से अगर फर्टाइल होती है तो ये सभी मेथड्स यहाँ पे यूज़ करनी है. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 137. Next topic is here water. We have to study about water. Water is an essential renewable natural resource, and water is renewable natural resource. About 70% of the total surface area of the earth is covered with water. और जो भी अर्थ सरफेस है यहाँ पे 70% वाटर से कवर है अपनी अर्थ, ये सभी को पता है. देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड द वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट. और इसीलिए जो अपनी अर्थ है, अपना प्लैनेट है, इसे वाटरी प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. About 97% of the water is found in ocean and seas, और 90% water ocean और seas में है. It is a saline and not fit for domestic agricultural and industrial uses. और जो भी वाटर है उसमें से 97% वाटर ओशन और सीज में मिलने की वजह से ये वाटर सलाइन है. और ये एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ नहीं होता. ओके, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, घर में जो हम वाटर यूज़ करते हैं उसे हम बोलेंगे डोमेस्टिक. ओके. देन फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 3%. और जो भी फ्रेश वाटर है वो कितने परसेंट अवेलेबल है ऑन आवर अर्थ? ओनली 3%. About 2/3 of this fresh water remains frozen in the glaciers and ice caps. And ये जो भी 3% वाटर है इसमें से 2/3 फ्रेश वाटर फ्रोज़न है, मीन्स आइस फॉर्म में है. ओके, जैसे ग्लेशियर्स, यू नो ग्लेशियर्स, रिवर ऑफ आइस. ओके. एंड आइस कैप्स, जो भी माउंटेन्स है इसके ऊपर जो भी आइस कैप्स रहती है उस आइस कैप के फॉर्म में भी ये फ्रेश वाटर है. ओके. ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ वाटर 1% इज़ अवेलेबल दैट फिट फॉर ह्यूमन यूज़, एंड ओनली 1% वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़. ओके. It is found as the surface water in water bodies like rivers, lakes, ponds and the streams, as a groundwater and as a water vapor in the atmosphere. And ये जो 1% फ्रेश वाटर है यहाँ, ये कहाँ पे मिलेगा हमें? जैसे रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स एंड ग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर्स ऑल्सो. जो भी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं ये भी फ्रेश वाटर ही है. Therefore fresh water is the most precious thing on the earth, and this fresh water is only 1% available on our earth. That's why this fresh water is most precious, most valuable for us. Got it? The quantity of water is fixed on earth. जो भी quantity है ये fixed है. It remains in motion through water cycle. And how we get the water again and again? Because of the water cycle. Okay. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. और ये जो फ्रेश वाटर हमें मिलता है ये कहाँ से मिल रहा है? रेन से. ओके. इट गैदर्स एज अ फ्रेश वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. और ये जो भी फ्रेश वाटर है जो हमें रेन से मिलता है, जब भी रेनफॉल होता है तो ये रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स में कलेक्ट होता है, गैदर होता है. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज. एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है. राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, और जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह से जो भी फूड डिमांड्स है ये बढ़ती जा रही है.
इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यू नो अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स डेवलप द सिटी, जो भी सिटीज़ है ये डेवलप्ड होती जा रही है. एंड राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, जो भी लिविंग स्टैंडर्ड है ये बढ़ता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है, राइज होता जा रहा है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी, और ये सभी चीज़ों की वजह से जो भी वाटर शॉर्टेज है, वाटर शॉर्टेज का जो भी प्रॉब्लम है ये क्रिएट होता जा रहा है इन मेनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है कि यहाँ पे वाटर शॉर्टेज रहता है. ओके, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, ऑस्ट्रेलिया and part of South America are facing shortage of fresh water supply. Okay, it is estimated that by 2025 65 countries of the world including India, Korea, Nigeria, Peru and Poland will face shortage of water in the near future. And ये अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक 65 कंट्रीज़ को वाटर शॉर्टेज को फेस करना पड़ेगा. ओके, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ इंक्लूड है. These existing resources of fresh water are either drying up or getting polluted. And जो भी फ्रेश वाटर के रिसोर्सेस है ये ड्राई होते जा रहे हैं या पोल्यूट होते जा रहे हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ हाईली अनइवन इन द वर्ल्ड, और जो भी फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइवन है, अनइक्वल है. ओके, इट इज़ नॉट इन यूनिफॉर्म, गॉट इट, इक्वल नहीं है. तो कहीं पे फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा मिलेगा तो कहीं पे कम मिलेगा. दैट इज़ अ अनइवन. ओके, हाईली अनइवन बोलेंगे हम इसे. दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन. एंड वाई, ये क्यों ऐसे होता है कि कहीं पे फ्रेश वाटर हमें बहुत सारा मिलेगा, कहीं पे मिलेगा, कहीं पे बिल्कुल ही नहीं मिलेगा. तो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन. जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस है ये अलग अलग है, अलग अलग प्लेस पे. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया. India gets plenty of rainfall during the monsoon season, but it is not evenly distributed. And जो भी रेनफॉल है मानसून का, मानसून सीजन में जो भी रेनफॉल हो रहा है इंडिया में बहुत सारा हो रहा है, बट इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ये इक्वल नहीं है. कहीं पे बहुत सारा रेनफॉल हो रहा है तो कहीं पे रेनफॉल ही नहीं हो रहा है, तो कहीं पे बहुत ही कम रेनफॉल हो रहा है. ओके, some parts get flooded while other parts suffer from droughts. और कुछ एरिया ऐसा है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और कुछ एरिया ड्राई रहता है. ओके, India is an agricultural country. It requires a continuous supply of fresh water to irrigate the farmland. And you know, our India is an agricultural country. In our India, agriculture is a primary occupation. Okay, and that's why it requires a continuous supply of fresh water to irrigate the farmland. जो भी farmland है, जो भी खेती है, इसे continuous fresh water का supply ज़रूरी है. After independence, the government of India undertook different multi-purpose projects like Bhakra Nangal Dam or River Satluj to make water easily available for farming and other related activities. एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो भी इंडियन गवर्नमेंट है, इन्होंने अलग अलग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए हुए हैं. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलेंगे हम, यूज़ किए हुए हैं. जैसे भाखरा नांगल डैम, रिवर सतलज, ये जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे लिए गए हैं, ये क्यों लिए गए हैं? to make water easily available for farming and other related activities. means जो भी farming है, जो भी activities है, other activities जो water से related है, इसे easily water supply हो, इसलिए बहुत सारे project यहाँ पे
यूज़ किए हैं. These multi-purpose projects are called the temples of modern India because they serve many purposes at the same time, like irrigation, controlling flood, generating electricity, breeding fish, and the creating recreational facilities. एंड ये जो भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है इन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा गया है. वाई? because they serve many purposes at the same time, like irrigation. Irrigation provide the water to the farm, okay, to the field. Then controlling floods means जो भी floods, जो भी बाढ़ आती है इसे कंट्रोल करते हैं. देन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी है ये जनरेट कर रहे हैं. ब्रीडिंग फिश एंड क्रिएटिंग रिक्रेशनल फैसिलिटीज़, और जो भी रिक्रेशनल फैसिलिटीज़ है लाइक गेम, लाइक एंटरटेनमेंट, ये जो भी फैसिलिटीज़ है ये भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ दीज multi-purpose projects. That's why these multi-purpose projects are called the temples of modern India. Got it? Now next topic is here conservation of water resources. Conservation to protect, okay, protection करना, संभाल के रखना. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वाटर है इसे पोल्यूट नहीं करना है, okay, that is the conservation. Increase in population result in water scarcity due to the greater demand. और जो भी population increase होती जा रही है उसकी वजह से जो water shortage है वो होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डिमांड. बहुत सारी डिमांड बढ़ने की वजह से वाटर शॉर्टेज होता जा रहा है. इट अर्जेंट स्टेप्स आर नॉट टेकन टू कंजर्व वाटर. मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इंडिया विल फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर. अगर कुछ स्टेप्स अर्जेंटली नहीं लेते तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ सकता है, especially in our India in future. Okay, some of the measures that can be taken for water conservation are, there are some measures. Measures means solution on any problem, means उपाय योजना उसे बोलेंगे हम. First, plantation of trees and other vegetation to check runoff. And first step is here, we should plant the trees and the other vegetation to stop runoff. जो भी runoff होता है, जो भी water flow होके जाता है तो इसे stop करना है. कैसे stop करेंगे? Plantation करके, trees का and vegetation का. Then next step is here, water harvesting should be done in both urban and the rural areas to store rainwater. Effluent should be treated before they are drained into water bodies. And जिस वाटर हार्वेस्टिंग भी हमें यूज़ करना है. जो भी प्रोसेस है वाटर हार्वेस्टिंग की, ये हमें अर्बन एंड रूरल एरिया में यूज़ करनी है टू स्टोर द रेन वाटर. जो भी रेन वाटर रहता है इसे स्टोर करने के लिए हमें वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करनी है प्रोसेस. ओके, देन ऑन नेक्स्ट पेज नंबर 138. स्प्रिंकल इरिगेशन एंड हेल्प ड्रिप इरिगेशन शुड बी प्रोमोटेड. और जो स्प्रिंकल इरिगेशन है एंड ड्रिप इरिगेशन है ये मेथड भी यूज़ करनी है. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द स्प्रिंकल इरिगेशन ऑन पेज नंबर 137. ओके, स्प्रिंकल इरिगेशन in dry regions with high rates of evaporation, drip and trickle irrigations is very useful. जो भी ड्राई रीजन है यहाँ पे ये जो भी मेथड है इरिगेशन, ये इरिगेशन की जो भी मेथड है ये बहुत ही यूज़फुल रहती है. दिस वैल्यूएबल रिसोर्स कैन बी कंजर्व बाय प्लान यूटिलाइजेशन एंड प्रोटेक्टिंग द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेस फ्रॉम पोल्यूशन. और ये जो भी रिसोर्स है वाटर रिसोर्स, इट इज़ अ वेरी valuable, it is a precious resource. okay, and ये जो भी resource है ये conserve हम कर सकते हैं अच्छे से प्लान करके. जो भी यूटिलाइजेशन है, जो यूज़ होता है, इसका भी प्लानिंग हमें करना चाहिए. और जो भी वाटर पोल्यूट होता है
इससे भी, पोल्यूट होने से भी हमें वाटर को बचाना है. It is very important that we make the best of what is available to us in the economical manner. Now today's topic is completed here. Our lesson is also completed here. Okay, you should read this lesson and find some words and their meanings from dictionary. Okay, and you should write these words and meanings in your notebook also. And after this video I will send question and answer. You should write this question and answers in your SST notebook. Okay, got it? Have a good day.